let's continue with the concept of Le-Chatelier's principle. One of the factor I've already stated, that is change in concentration. Whenever we change the concentration of a system which is at equilibrium, whether we are changing the concentration of reactant or we are changing the concentration of product, anyhow the system will resist the change and it will try to maintain its equilibrium, or re-maintain, I should say, re-maintain the equilibrium position. So it will either shift in the forward or the backward direction depending upon the change that has been made to it. The second factor under this title Le-Chatelier principle is change in pressure. Now if the pressure is increased, volume will decrease and the number of moles per unit volume will increase. If we are increasing the pressure, volume will decrease, considering we've kept the temperature constant, right? If the volume is decreasing, then number of moles per unit volume overall, this entire quantity will increase. So the equilibrium will shift in that direction in which the number of moles will decrease. Number of moles per unit volume are decreasing, right? So if number of moles per unit volume we need to decrease it, we'll decrease what? Number of moles. ठीक है? तो जहां भी हम प्रेशर चेंज करते हैं, अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. बट इन केस ऐसा कोई रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा एन जीरो है, मतलब number of moles of reactant, total number of moles of reactants are equal to total number of moles of product, right? That is delta n is equal to 0. तो वहां पर प्रेशर का कोई भी अफेक्ट नहीं होगा. There will be no effect of change in pressure, right? So this change in pressure will be considered only in the case when delta n is not equal to 0. जब reactant या product किसी ना किसी के total number of moles LHS में या RHS में ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तब ही ये जो फैक्टर है ये गवर्न वहां पर वर्क कर पाएगा, राइट? थर्ड फैक्टर इज चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर, अब ये डिपेंड करता है कि आप एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हो या आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हो. इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन, आई होप यू नो व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. द रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो ये बात मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंडोथर्मिक रिएक्शंस फेवर होते हैं. सो इन दिस केस the equilibrium will shift in the forward direction. More product will be formed. In case we are considering exothermic reaction, a reaction which proceeds with the liberation of energy, and we are increasing temperature in it, then the equilibrium will be, the reaction will be suppressed and equilibrium will shift in the backward direction. Right? इसलिए हम कहते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हमेशा हमें थोड़ा हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म करवाना चाहिए और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को अकॉर्डिंग टू दिस हमें लो टेम्परेचर पे परफॉर्म करवाना चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स लो टेम्परेचर पर रेट जो होगी रिएक्शन की वो कम होगी, इसलिए हम ना लो ना हाई, दैट इज वी परफॉर्म द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर, एट अ मॉडरेट टेम्परेचर, राइट? द नेक्स्ट फैक्टर अंडर दिस ली-शाटलियर प्रिंसिपल, नेक्स्ट फैक्टर जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज चेंज इन वॉल्यूम. Change in volume, right? Now if volume is increased, अगर हम volume को increase करते हैं तो pressure will decrease if you have kept the temperature constant. So equilibrium will shift in that direction in which the pressure is increasing. अब pressure increase कैसे होगा? अगर आप number of moles increase कर देते हो, तो अगर आप volume decrease कर रहे हो तो equilibrium उस direction में shift होगा जहां पर अगर आप volume increase कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, सो एज टू इंक्रीज द प्रेशर, राइट? बट अगेन बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल, इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा वॉल्यूम चेंज करने से. इफ डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इट इज पॉजिटिव, देन द रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. इफ डेल्टा एन इज नेगेटिव, दैट इज इट इज लेस देन 0, देन द रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड direction to follow the Le-Chatelier principle. Yes, for example, let's say अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है से H2 plus I2 giving twice HI. अब इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2. टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ हम रिएक्टेंट लिख देते हैं 1 + 1 2, राइट?
टोटल नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के कितने हैं 2, इसका मतलब डेल्टा एन इज इक्वल टू 0. डेल्टा एन एक्चुअली मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ पर वॉल्यूम का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. बट इन केस लेट्स से वी हैव टेकन अ reaction PCl5 decomposing into PCl3 and Cl2. यहाँ पर reactant के मोल है 1, यहाँ पर प्रोडक्ट के टोटल मोल है 1 + 1 2. तो इन दिस केस डेल्टा एन इज ग्रेटर दैन 0. तो यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज करते हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा. ऐसे ही हम कंसिडर कर सकते हैं एग्जाम्पल, वी आर ऑल वेल अवेयर ऑफ द Haber's process. N2 plus thrice H2 giving twice NH3, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग. यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने 1 + 3 4, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने 2. तो डेल्टा एन इज लेस दैन 0, इट इज -2 इन दिस केस, राइट. तो अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में. द नेक्स्ट फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू डील इज इफेक्ट ऑफ inert gas addition. Inert gas addition, right? Inert gas जरूरी नहीं कि आप हीलियम नियॉन जैसी कोई गैस ऐड करो. Inert gas यहाँ पर मतलब है a gas which is not going to participate in the reaction, which is inert for that particular system, जो उस सिस्टम में प्रेजेंट ना रिएक्टेंट से रिएक्ट कर सकता है ना ही वो प्रोडक्ट से रिएक्ट कर सकता है. तो जरूरी नहीं है कि हम रेयर गैस या नोबल गैस या इनर्ट गैस, जो सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस है हमारे पास, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, इन्हीं को ऐड करें. हम कोई भी इसमें गैस ऐड कर सकते हैं, ऐसी गैस जो उस सिस्टम के लिए इनर्ट हो, मतलब वो उसमें प्रेजेंट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करेगी. जैसे नाइट्रोजन है, बहुत बार वो सब्सटेंसेस से जो प्रेजेंट होते सब्सटेंसेस उनसे रिएक्ट नहीं करती है, राइट. तो उस सिस्टम के लिए वो गैस कैसे बिहेव कर सकती है, इट कैन बिहेव एज एन इनर्ट गैस, राइट. तो अगर हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं ना, देयर आर टू कंडीशंस इन दैट. या तो हम कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड कर रहे होंगे या हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड कर रहे होंगे, राइट. फर्स्ट लेट्स से हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं कि वी आर एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहां पर इनर्ट गैस के एडिशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. वो वॉल्यूम चेंज नहीं कर पा रही है, वो प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं कर पा रही है, तो उसका एज इट इज इक्विलिब्रियम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. बट इन केस वी आर एडिंग द इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट. तो अगर इनर्ट गैस को ऐड करते हैं सो एज टू मेंटेन दैट कांस्टेंट प्रेशर, क्या होगा, वॉल्यूम विल हैव टू बी इंक्रीज्ड, so the equilibrium will shift in that direction where the number of moles are increasing, right. तो अगर हम constant pressure पर inert gas को add करते हैं तो equilibrium will shift in the direction where number of moles are increasing, right. और अगर constant volume पर add करते हैं तो इसको inert gas के addition से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. Now let's take some एग्जाम्पल्स जहां पर हम ली शार्टले प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं. जैसे अभी मैंने हैबर्स प्रोसेस की बात करी थी, तो लेट्स टेक सम एप्लीकेशंस ऑफ ली शार्टलेस प्रिंसिपल. फर्स्ट एप्लीकेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया. ये कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रिट्ज हैबर ने इसको डेवलप किया and he received Nobel Prize. Why? Because manufacturing of ammonia is commercially very, very important. It is used in fertilizers. The ammonia produced is used, one of the main uses fertilizers, right? तो इसको हम बोलते हैं Haber's process. And the equation for it is nitrogen reacts with hydrogen giving ammonia. This is the balanced equation for this. अब अगर हम इसमें सारी कंडीशंस अप्लाई करें ना, दिस रिएक्शन दिस इज एक्सोथर्मिक. इसके लिए जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी चेंज. एंथैल्पी एज ऑफ नाउ यू कैन कंसिडर द एनर्जी चेंज, वट एवर एनर्जी चेंज इज अकरिंग इन द रिएक्शन, दैट इज नोन एज एंथैल्पी चेंज, राइट. तो इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज नेगेटिव, 22.4 किलो कैलोरी पर मोल, माइनस 22.4 किलो कैलोरी पर मोल. तो वो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है. डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब है अगर आप कहीं भी कोई लिटरेचर पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो और उसमें आपको ये एंथैल्पी मिल जाए और लिखा हो कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है उसके लिए एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, तो आप ये अपने आप समझ जाना कि एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आने का मतलब है दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक.
राइट। किसी के लिए भी अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है, तो हम उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं। ये साइन कन्वेंशन हमने बना रखे हैं, ठीक है। तो अगर डेल्टा एच हम बोल रहे हैं नेगेटिव है हैबर्स प्रोसेस के लिए, इसका मतलब जब भी हैबर्स प्रोसेस होगा एनर्जी विल बी रिलीज्ड, राइट। तो अगर हम इसमें कंडीशंस लगाएं, तो अगर टेम्परेचर की कंडीशन लगाते हैं, तो ली शार्टले प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो फेवर नहीं होगा रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम बहुत हाई टेम्परेचर पर परफॉर्म नहीं करवा सकते अकॉर्डिंग टू ली शार्टले प्रिंसिपल। बहुत लो टेम्परेचर पर भी नहीं करवा सकते क्योंकि हमें रेट थोड़ी अच्छे से मेंटेन करनी है। दिस इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रिपरेशन एट अ वेरी लार्ज स्केल, एट अ कमर्शियल स्केल, राइट। तो इसके लिए हमें जो टेम्परेचर रखना पड़ेगा वो कैसा रखना पड़ेगा, मॉडरेट टेम्परेचर, ना बहुत हाई ना बहुत लो, in order to increase the yield of ammonia, right। फिर इसकी नंबर ऑफ मोल्स, इसका अगर मैं डेल्टा एन देखूं तो डेल्टा एन कैसा है, इसका नेगेटिव है, डेल्टा एन -2 आ रहा है। तो इसके लिए जो प्रेशर है वो भी क्या रखना पड़ेगा, हाई, राइट। और अगर अमोनिया बनते ही निकाल ली जाए तो अगेन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अमोनिया जैसे ही बन रही है आप उसको बाहर निकाल सकते हो, या आप रिएक्टेंट की कंटिन्यूस क्या कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। तो रिएक्टेंट इंक्रीज होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, प्रोडक्ट डिक्रीज होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। सो फॉर दिस हैबर्स प्रोसेस हम जो कंडीशन मेंटेन करते हैं वो होता है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नियरली 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। We provide a catalyst iron and we provide a promoter which can be molybdenum, right। तो ये सारी conditions लगाकर हम अमोनिया की yield increase करते हैं। So this is one common application of Lee-Chatelier principle। दूसरी application जिस पे question भी आते हैं, बहुत commonly asked है, that is melting of ice, right। Ice can be written as H2O solid converting into H2O liquid। और जब जो भी कन्वर्जन पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, व्हाटएवर, उस पर हमेशा दोनों स्टेट्स कोएग्जिस्ट करती हैं और दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। नाउ दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। वी नो जब आइस हीट को एब्जॉर्ब करेगी, राइट, तभी वो मेल्ट होगी वाटर में। तो दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। व्हाट शुड आई राइट, आई शुड राइट डेल्टा एच, इसके लिए क्या है, पॉजिटिव, right। So this is endothermic in nature, although this is not a reaction, this is a process, but this process is endothermic। इसका मतलब इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, टेम्परेचर शुड बी हाई। जितना हाई टेम्परेचर करेंगे उतना फेवर होगा ये रिएक्शन। जब लिक्विड बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज। वी नो आइस is less denser than water, that is why even being a solid floats over the surface of water। ऐसे इसलिए क्योंकि जब आइस फॉर्म होती है तो उसमें एयर गैप्स आ जाते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो जब वाटर बन रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। तो अगर हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मोर वाटर विल बी फॉर्म्ड, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई और प्रेशर हाई। So these were the applications of Lee-Chatelier principle। Now we can discuss some numericals based on this topic। वैसे तो आप फिजिकल के टॉपिक्स की जितनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, उतने ही आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को। यू डोंट हैव टू रट अप मग अप द थिंग्स और रटिफाई द थिंग्स, बट यू नीड अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से आप जैसे वेराइटी के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे और उतना ही वो आपको बेनिफिशियल होगा, राइट। So let's practice some questions of chemical equilibrium, maybe some simple ones, and then we'll move on to some good numericals, right। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम पहले एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं। Let's say we have a system, say we have H2I2 system, H2 plus I2 giving twice HI। Now the equilibrium constant for this reaction is 55.3 at 426 degree Celsius। Now you need to find out the equilibrium constant in two conditions. One, if the reaction is reversed. First condition is this. Second condition, if the reaction is represented as thrice H2 plus thrice I2 giving 6HI। तो इन दो कंडीशंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ाया था। इसको सोल्यूशन
कैसे करेंगे हम? H2 plus I2 giving twice HI. For this Kc is 55.3. First, I'm solving the first part when the reaction is reversed. तो reverse reaction को ऐसे लिखेंगे, right? जब भी हम reaction को reverse करते हैं, let's say new equilibrium constant is Kc dash. Remember क्या किया था? Reciprocal कर दिया था, है ना? तो इसका आ जाएगा Kc dash will be 1 upon 55.3. So this will be the new equilibrium constant when the reaction will be reversed. Second condition, जब हमने reaction को represent किया है thrice H2 plus thrice I2 giving 6 HI. मतलब what we have done, हमने original equation जिसके लिए equilibrium constant given है, we have multiplied that equation by 3. तो अगर हम किसी भी नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? ओल्डर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो पावर बन जाती है जिस नंबर से हमने उसको मल्टीप्लाई किया. तो इन दिस केस Kc डैश विल बी Kc होल क्यूब. सो Kc डैश विल बी 55.3 का क्यूब. 2 से मल्टीप्लाई किया होता तो स्क्वायर हो जाता, 2 से डिवाइड किया होता तो अंडर रूट हो जाता, 3 से डिवाइड किया होता तो क्यूब रूट हो जाते हैं, राइट? ये सारे हो जाते हैं. लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स से वी हैव टू डिफरेंट रिएक्शंस. हमारे पास दो रिएक्शंस हैं. सो द फर्स्ट रिएक्शन इज COO प्लस हाइड्रोजन. इट्स इन इक्विलिब्रियम विद कोबाल्ट plus H2 in the gaseous state, right? And the value that has been given for the equilibrium constant is 67 इस reaction के लिए. The second reaction is, इसी का ही हमने reaction करवाया है कार्बन मोनोऑक्साइड से. रिडक्शन ही तो करवाना है. कोबाल्ट बना, ऑब्वियसली साथ में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. The K that has been given for this reaction, let's say this is K1, this is K2, this is 490. Okay, you need to calculate the equilibrium constant for the reaction CO2 plus H2 giving CO plus H2, right? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमारे पास तीन रिएक्शंस हैं. हमें ये जो थर्ड रिएक्शन है इसके लिए लेट्स से KC है, दिस is needed to be determined. ये हमें determine करना है. तो can we anyhow derive the third reaction from the first two reactions? Yes, we can. अगर हम तो जो first two reactions हैं उनको combine करते हैं, अगर इन दोनों को add कर दें तो common terms left hand side और right hand side पे cancel out हो जाएंगे and the net equation will be the third reaction. तो इसका जो solution होगा, we can add equation 1 and equation 2, that will give us equation 3. yes, तो अगर हम ऐड करते हैं और ऐड करने के लिए वी नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर है? प्रोडक्ट साइड में. तो ऐड तो करना है लेकिन सेकेंड इक्वेशन को हमें क्या करना है? रिवर्स करके ऐड करना है, तभी कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट होंगे. तो इक्वेशन 1 को हमने लिखा इस तरीके से हमने लिखा, ठीक है. और हमने इसमें ऐड करी कौन सी इक्वेशन? सेकेंड, बट विच हैज बीन रिवर्स्ड. तो रिवर्स इस तरीके से हो जाएगा, राइट. नाउ वी कैन कैंसिल आउट द कॉमन टर्म्स, राइट. एंड द नेट इक्वेशन जो हमें मिलेगी वो इन दोनों को एड अप करके मिलेगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड विद हाइड्रोजन गिविंग वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो जब भी हम इक्वेशंस, यहाँ पर दो फैक्टर्स लग रहे हैं, जब भी हम इक्वेशन को ऐड करते हैं उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रेसिप्रोकेट करते हैं, राइट. तो इन दिस केस Kc विल बी व्हाट? K1 into 1 upon K2. तो इट विल बी 67 into 1 upon 490. That will give you the value of 0.13, राइट. तो इस थर्ड इक्वेशन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी दैट विल बी 0.137. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, अनदर क्वेश्चन. हैबर्स प्रोसेस का ही क्वेश्चन ले लेते हैं. द क्वेश्चन इज 1 mole नाइट्रोजन. वी हैव टेकन 1 mole नाइट्रोजन
It is mixed with 3 moles hydrogen in a 4-liter container, right? If 0.25% of nitrogen, 0.25% of nitrogen is converted to ammonia, अगर इतना ही परसेंट अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, then what is the equilibrium constant for the entire reaction? The reaction is obviously Haber's process, N2 plus thrice H2 giving twice NH3. तो इसके लिए equilibrium constant की वैल्यू क्या है? This has been asked, right? Now this entire reaction is done in a 4-liter container. तो अगर 1 मोल नाइट्रोजन हमने लिया है, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया है, तो 1 मोल 3 मोल किस में प्रेजेंट है? 4 लीटर में. अगर हम कंसंट्रेशन डिसाइड करेंगे तो कंसंट्रेशन इसकी 1/4 होगी मोल्स पर लीटर, इजंट इट? हाइड्रोजन की 3/4 होगी. उसके अकॉर्डिंगली अमोनिया की हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, राइट? अब नाइट्रोजन सेकेंड जो गिवन है इंफॉर्मेशन वो ये है कि नाइट्रोजन आप कितना भी लो 0.25% उसका अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? तो सपोज हमने 1 मोल लिया है, अगर हम लीटर का कन्वर्जन भी इफ यू वांट के हम बाद में करना चाहें तो लेट्स से हमने 1 मोल अमोनिया लिया, 3 मोल नाइट्रोजन लिया, तब ये 0 मोल बन रहा है. T is equal to 0. द रिएक्शन हैज नॉट स्टार्टेड. ठीक है, तो 0.25% तो 1 माइनस 0.0025 इसमें से रिड्यूस हो गया. अगर इसका 1 मोल लिया था तो इसके 3 मोल कंज्यूम हो रहे होते. इसके हिसाब से इसका जो रिड्यूस होगा दैट इज 3 इंटू 0.0025 और अमोनिया कितना बनेगा? ट्वाइस इंटू जो भी आपने नाइट्रोजन लिया था ट्वाइस इंटू 0.0025 जितना वो कन्वर्ट हो पा रहा है. ठीक है, now this will come out to be 0.9975 nitrogen. Hydrogen will come out to be 2.9925 and this will come out to be 0.005. But this is in a 4-liter container जिसका टोटल वॉल्यूम 4 है. तो मोल्स पर लीटर फाइंड आउट करने के लिए हम डिवाइड बाय 4 कर दें सबको, ये मोल्स पर लीटर आ जाएंगे. केसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? केसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा अमोनिया की जो भी कंसंट्रेशन है उसका स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और जो भी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है उसका क्यूब. This will be the expression for equilibrium constant, right? So we can substitute the values and once we calculate it will come out to be 1.481 into 10 raised to power minus 5 moles per liter, right? So equilibrium constant will come out to be this.